Hello everyone. So this is project number 7 of machine learning. तो इस प्रोजेक्ट में हम एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल बनाएंगे। ये एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम मॉडल को भी तैयार करेंगे और इस वेबसाइट को भी बनाएंगे। सो फर्स्ट लेट मी शो यू द डमी। सो आई हैव सम फीचर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, सो लेट मी पेस्ट इट। सो these are 30 features. Okay, now what are these? We will discuss a bit later, but first let me click on this button. Either it will display that this transaction of this card transaction could be legitimate, मतलब सही है, or it could be fraud. So let's see. Okay, it says that this is legitimate transaction. Okay, now let me close this and let's start from the beginning. Okay, so सबसे पहले हम डेटा को गेट करेंगे, फिर उसको प्री प्रोसेस करेंगे, then we will create a model while using logistic regression, and after that we'll be creating a streamlit web app. Okay, now how you will get this data? तो ये जो भी डेटा होगा मैं इसको आपके साथ जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप मेरे गिटहब के अकाउंट पे जाके ये जो सारा कोड है ये भी देख सकते हो और वहां से इस डेटा को भी डाउनलोड कर सकते हो। सो फर्स्ट लेट्स इंपोर्ट द नेसेसरी पैकेजेस। इंपोर्ट numpy एज np। इसके बाद हमें पेंडास चाहिए डेटा क्लीनिंग के लिए, एंड वी आल्सो नीड फ्रॉम sklearn डेटा को स्प्लिट करने के लिए sklearn के अंदर एक क्लॉज है मॉडल सिलेक्शन। सो मॉडल सिलेक्शन से हम इंपोर्ट करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ओके, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी हम इंपोर्ट करते हैं, and we'll be discussing that what is logistic regression as well. तो यहाँ पे linear मॉडल से इंपोर्ट कर दो logistic regression। मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए sklearn डॉट matrices क्लास से इंपोर्ट करो एक्यूरेसी। ओके, नाउ रन दिस सेल। ओके, जो डेटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है उस डेटा को डाउनलोड करो। नाउ लेट्स इंपोर्ट द डेटा। सो व्हाट आई डू, लेट मी गिव अ नेम। क्रेडिट कार्ड df will be equal to pd.read csv, and let me check what is the name of my data. This is credit card.csv. okay, so credit card, this one. Okay, and let's check the head of this data set dot head. Okay, so this is our data set. Now this is, you can see here we have a lot of features. इस data set में बहुत सारे columns हैं, but just focus on the first column for now. जो first feature है वो है time. अब इस टाइम का क्या मतलब है, और इसके बाद v1 v2 v3 v4 v5 until v28, these are the different features and most important features. They are the input features. Okay, this is the amount feature and this is the class feature. Now this entire data set is all about credit card. So let's discuss the first feature. फर्स्ट फीचर में ये बताया गया है कि इस क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन है उनमें टाइम इलेप्स कितना है सेकंड्स में। अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन की सेकंड है 0.0, देन व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ transaction or second transaction or fourth transaction. So let's say between 5 and first transaction, this is the time elapsed. Okay, 0.0, 1.0 and 1.0 means these are 2 seconds. There are 2 seconds gap between these two transactions. Okay, these features, this v1 until v28 is something about transaction, like transaction amount, transaction location in float points.
ये 28 फीचर्स जस्ट ये शो करता है कि दिस ट्रांजैक्शन एट इंडेक्स 1 की लोकेशन क्या है, उसकी अमाउंट क्या है, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देता है. ओके, एंड दिस feature represent the transaction amount, okay, in dollar 140. The first transaction amount in dollar is 149 and point something. The third transaction is 378 point something, and the last feature is 0 and 1. 0 stand for legitimate transaction and 1 stand for fraud transaction. So let's explore the data. First let me show you. We have name dot info. As you can see here, these are all float type, okay, and in this data set we have total 2 lakhs 84,807 entries, okay, and all features have float type values. But what if I want to check the shift? So I'll simply say credit tf.shift so that I can check all these. So we have 31 features and all these data points, or you can say rows, 2,84,807. now मुझे इस डेटा को देखना है कि क्या ये डेटा बैलेंस है या इम्बैलेंस है. बैलेंस इम्बैलेंस देखने के लिए आपको लास्ट वाला जो कॉलम है फीचर्स है वो देखना होगा, और वो है हमारा क्लास. एंड आई नो दैट देयर आर zeros and ones. So if I check value counts here, it should be value counts. Oops. Run. Now here you can see this data set is almost imbalanced because we have fraud transaction, a lot of fraud transaction, okay, but we have just legitimate transaction 492, and this is not a good feature in case of balance or imbalance. So this is imbalanced data set, so we have to make it balance. ओवरऑल इस डेटा सेट में जो हमारा सबसे अहम आउटपुट फीचर है और डिपेंडेंट फीचर क्लॉज है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 0 लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन को एंड 1 रिप्रेजेंट करता है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को. ये दोनों बिल्कुल दूर है एक दूसरे से. दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो दिस इज इम्बैलेंस्ड डेटा एंड आवर मॉडल वुडंट बी गुड फॉर दिस डेटा. ओके, सो हमने इसको बैलेंस बनाना होगा. बट फर्स्ट लेट मी चेक द स्टैटिस्टिक ऑफ माय डेटा सेट. सो क्रेडिट df.describe. सो हियर यू कैन सी जब आप किसी डेटा पर डिस्क्राइब लगाते हो तो ये स्टैटिस्टिक बताता है. ईच फीचर के लिए काउंट बताता है दैट यू हैव ऑल दिस वैल्यूज इन ईच फीचर, ओके, एंड इट आल्सो रिप्रेजेंट द मीन वैल्यू, द एवरेज वैल्यू, ओके. सो द एवरेज time elapse between each transaction is this one in mean. The average is this one. And if we check the amount in second transaction for each transaction in column amount we have 88 mean, okay. इसी तरह आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी देख सकते हो कि वैल्यू हर फीचर के अंदर जो वैल्यूज है उनमें स्प्रेडनेस कितना है, एक दूसरे से वो कितना स्कैटरनेस करता है. सो फॉर ईच फीचर इट इज लाइक दिस वन, ओके. यू कैन ऑल्सो सी द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू इन ईच फीचर एंड ऑल्सो परसेंटाइल 1, 2 and 3, ओके. सो दिस इज द बेसिक स्टैटिस्टिक. ये नेसेसरी होता है जब आप अपने डेटा की स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स को अच्छी तरह देखना चाहते हो. तो जैसे कि हमने बात की कि हमारा डेटा सेट इम्बैलेंस है, वी हैव टू मेक इट बैलेंस बिफोर फीडिंग टू आवर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल एल्गोरिथम. तो मुझे इसको बैलेंस बनाना होगा. तो बैलेंस बनाने के लिए मैं 2 एक्स्ट्रा स्टेप करूंगा. मैं 2 डेटा सेट बनाऊंगा. एक को मैं नाम देता हूँ लेजिट विल बी इक्वल टू माई क्रेडिट df, और इसके अंदर मैं क्रेडिट df के अंदर जो क्लास है लास्ट वाला फीचर
अगर वो जीरो के इक्वल है तो मेरा जितने भी जीरोज होंगे they will store in this new variable. Okay, apart from that I'll create another variable by the name of fraud, and I'll do the same step. Means I'm taking all the, you can do is you can also perform this operation like this. Okay, they are similar. One, so जितने भी वन वाले हैं वो इस fraud में आ जाएंगे. Okay, let me run. Now let me check legit. Oops, legit dot value counts. ओके, ये बहुत डरावना है. तो what I'll do apart from that, I'll simply check. Okay, you can see. So all the ones value will be stored, sorry, zero value will be stored in legit. Also you can check for fraud. Fraud dot head, then value counts, and why it's show me in this way I don't know, but still हमें एक आइडिया लग गया. अब मैं क्या करूंगा, चूंकि मुझे पता है कि मेरे जो वन थे वो बहुत कम थे, तो मैं ये जो 400, what was the shape, if I check the shape, let me check the shape, fraud dot shape, it's mean that we have 494 fraud transaction. तो मुझे legit के अंदर भी इतने चाहिए. And if I check this shape dot shape, and these are a lot, and these are all extra. So I will just grab 492 zeros, mean fraud, not fraud, sorry, a legitimate transaction, and I'll store this again in the same variable, or we can say let's say another variable. So I'll say legit sample will be equal to what I'll do, I'll simply say legit dot sample. I will grab randomly. Okay, how many I need such type of data so that they could be balanced. तो मैंने क्या किया, इस जो legit वेरिएबल के अंदर मैंने जितने भी जीरोस थे, दैट वाज 2,84,315. अब मुझे ये सारे नहीं चाहिए, मुझे इन 2,84,315 में से जस्ट चाहिए 492 जीरोस, सो दैट ये बराबर हो जाए इस फ्रॉड के, क्योंकि फ्रॉड के अंदर इतने वंस हैं. मुझे डेटा को बैलेंस बनाना है. और उसके बाद मैं डेटा के नाम से वी कैन से क्रेडिट df विल बी इक्वल टू pd डॉट कनकैट करूंगा, मैं लिस्ट पास करूंगा जो मेरा इन दोनों को मैं कनकैट करूंगा. सो आई विल सिंपली से fraud and not fraud, sorry, first let me legit sample in which we have 492 true transaction, or you can say zeros, and also fraud in which we have 492 ones, means fraudulent transaction, and I'll say access will be 0 because I want rows. Okay, and let me run. If I check my new df dot shape, okay, that's perfect. We have 31 features, but this time our data is good. But what if I check the last feature class dot value sometime it doesn't show me auto suggestion like this. Perfect. So we make it balance. Okay, 0 same and ones are same. Now our data set is balanced. तो हमने अपने डेटा सेट को बैलेंस किया. अब मुझे एक आखिरी काम करना है, फिर हम अपना मॉडल तैयार करेंगे. तो आखिरी काम मैं कैसे करूंगा,
व्हाट, मैं इस क्लास के मीन को निकालूंगा और इस पर एक ग्रुप बाय लगाऊंगा। तो मैं कहूंगा क्रेडिट pf डॉट ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, यानी 0 and 1, और मैं इनकी मीन निकालूंगा। ओके, सो जितना भी 0 का होगा वो यहाँ पे आ जाएगा मीन, और जितना 1 का होगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा फॉर ऑल फीचर्स। अब इसके बाद लेट्स स्प्लिट आवर डेटा इनटू एक्स एंड वाई। तो सारे इनपुट फीचर आपके हो गए। क्रेडिट कार्ड df डॉट ड्रॉप करूंगा इससे मैं जस्ट लास्ट वाले फीचर को, जो कि है क्लास ऑन एक्सेस कॉलम मींस 1। जितने भी अदर फीचर्स है 30 वो इस x के अंदर आ जाएंगे। दे विल बी माय इनपुट फीचर्स, इंडिपेंडेंट फीचर्स, and the last feature, the dependent feature, will be means 0 and 1 means class will be stored in y, and this y will be dependent on these features. Okay, so let me run and let me show you x dot shape all 30 features with all that values, and let me check y dot shape. There will be just 984 and with one feature, as you can see. Now let's use x trend and y trend. So for that, to save my time, what I'll do, I'll go down, I'll just copy x trend y trend, because we have performed this operation a lot in previous videos and previous projects. तो इसके लिए मैं इस लाइन ऑफ कोड को कंट्रोल C करूंगा and I'll simply paste. Now मैंने क्या किया, x trend, x test, y trend, y test नॉर्मली हम हर प्रोजेक्ट में करते हैं यूजिंग ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट दैट वी हैव इंपोर्टेड फ्रॉम मॉडल सिलेक्शन। जो इनपुट फीचर है और जो प्रेडिक्टेड फीचर है उनका हमने 80% डाटा x ट्रेंड एंड y ट्रेंड में रखा, जो जिससे हम अपने मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ट्रेन करेंगे। फिर उसको x टेस्ट एंड y टेस्ट से देखेंगे, ठीक है, जो कि 20% है। स्ट्रेटिफाई वाई हम तब रखते हैं जब हमने अपने मॉडल को बताना हो कि जो आपके ट्रेंड है एक्स ट्रेंड, उसके अंदर जितना वैल्यू होगा उतना वैल्यू वाई ट्रेंड के अंदर भी होगा, या एक्स टेस्ट के अंदर जितना वैल्यू होगा वो वाई टेस्ट के अंदर भी होगा। रैंडम स्टेट हमने 2 रोका, आप कोई भी रख सकते हैं। नाउ लेट मी रन दिस वन। नाउ लेट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बट फर्स्ट लेट मी शो यू दैट व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। So logistic regression मैं एक इमेज की मदद से समझाऊंगा। तो ओके, which image would be, this image would be perfect I think. So normally logistic regression classify करता है आपके true and false को, 0 and 1 को, स्पैम और हैम को। तो 0.5 के ऊपर जो आपका डेटा होगा वो होगा ट्रू, ठीक है, जो हमारे केस में फ्रॉडुलेंट है, और 0.5 से नीचे होगा 0 जो कि फॉल्स, जो हमारे केस में लेजिटिमेट है। तो मेरा डेटा स्कैटर लीक यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर मैं लेट से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचूं इस यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे, तो मेरा कुछ डेटा इस साइड पे होगा, कुछ डेटा इस साइड पे होगा, नीचे भी 0 के केस में कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा। इस पॉइंट को हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। अगर मैं इस पे लीनियर रिग्रेशन खींचता, लीनियर रिग्रेशन यू नो फॉर कंटिन्यूअस प्रॉब्लम हम करते हैं, तो बहुत से वंस का जो डेटा यहाँ पे होगा वो मिस हो जाएगा। लेट से अगर मेरा यहाँ पे कोई नया डेटा आता, आउटलायर आता, तो वो मिस कर जाता, सेम यहाँ पे भी। तो हम एक ऐसा कर्व खींचते हैं जो हर वैल्यू पॉइंट को कैप्चर कर सके, क्लासिफाई कर सके, और वो काम आपका करता है मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिदम है उसमें सपोर्ट वेक्टर मशीन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, बट वी आर यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसको पास करूंगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और इस मॉडल के अंदर मेरा जो 80% डाटा है वो फीड करूंगा, फीड करूंगा, दोनों भी आप कह सकते हैं। सो एक्स ट्रेंड, वाई ट्रेंड,
और एक मैं वाई प्रेड बनाऊंगा और उसके बाद मॉडल से प्रेडिक्ट करूंगा जो मैंने बचा के रखा है। आप ट्रेन के लिए भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली टेस्ट पे करूंगा। सो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन है, इसके अंदर मैंने जो 80% डेटा इससे इसको ट्रेन किया, अब मैंने जो 20% बचा के रखा है जो मशीन इस मॉडल ने नहीं देखा है उससे मैं इसकी टेस्ट देखूंगा, टेस्ट करूंगा, प्रेडिक्ट करूंगा इस पे। तो एक्स टेस्ट मैंने पॉज किया और इसको रन किया। अब मैं कंपैरिजन करूंगा जो मैंने बचा के रखा है वाइट टेस्ट 20% और जो 20% के अंदर मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस 80% ट्रेनिंग। इन दोनों की कंपैरिजन करने के लिए मैं एक्यूरेसी स्कोर करूंगा। सबसे पहले वाई प्रेड पास करूंगा जो मशीन ने यानी इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने प्रेडिक्ट किया है, और जो मैंने बचा के रखा है जो मशीन ने यानी इस मॉडल ने नहीं देखा है वाई टेस्ट। अब इन दोनों की कंपैरिजन के बेस पे ये हमें एक्यूरेसी देगा विच इज अमेजिंग, दैट इज 90% विच इज परफेक्ट। ओके, तो अब हमारा मॉडल तैयार है, हमने इसके लिए एक वेबसाइट बनाना है। तो चलिए अब वो करते हैं कि हम इसके लिए एक स्ट्रीमलेट वेब ऐप किस तरह बना सकते हैं। सो आप अपना कोई भी एडिटर ओपन करें, आइदर वीएस कोड और पाइचार्म। जो फोल्डर आपने ओपन किया था वहां पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करें या आप एक नया फोल्डर भी बना सकते हो, और उसके अंदर एक पाइथन फाइल बनाएं app.py या test.py। इसके अंदर हम वेब ऐप बनाएंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू कॉपी पेस्ट समथिंग। सो व्हाट आई डू, मैंने जो कुछ काम किया था ये जितने भी लाइब्रेरीज या नेसेसरी, सबसे पहले मैं इनको कॉपी करके अपने इस वाले फोल्डर में फाइल में डालूंगा। अब ये numpy pandas sklearn सारे हमने किए थे, ये नया लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st। तो इसी के अंदर हम अपना वेब ऐप बनाएंगे। सो हाउ टू इंस्टॉल इट, गो टू योर टर्मिनल एंड और cmd command, just type there pip install streamlet and enter pip install streamlet। चूंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बट मे बी इन योर केस इट मे टेक अ फ्यू मिनट। उसके बाद जो हमने डेटा, हमारा डेटा था वो मैं यहाँ से उठाऊंगा। जो मैंने दो लेजिट एंड फ्रॉड के दो कॉलम बनाए थे, वो जो मैंने सारा कोड वापस किया था वो सारा मैं यहाँ से कट करूंगा। हमने यहाँ तक किया था, या वी हैव डन दिस थिंग्स। सो मैंने बस वही कोड यहाँ पे उठाया एंड कॉपी पेस्ट किया। अब कुछ वेरिएबल्स मैंने चेंज किए हैं, जरूरी नहीं है कि आप वही वेरिएबल यूज करो। First time I have given the name to my data set credit data, but this time it's just data. So बाकी चीजें सेम एंड वही हमने जो सैंपल उठाया था 492, लेकिन मैंने इस बार वो कॉलम ही पूरा का पूरा पेश किया। मैंने रैंडम स्टेट यहाँ पे ऐड किया है, वहाँ पे ऐड नहीं किया था कि आप दो, क्योंकि ये जो लेजिट से सैंपल उठा रहा था on the basis length of 492, आप यहाँ पे डायरेक्टली लेंथ के बजाय 492 पास कर सकते हो। ओके, या आप ये काम लेंथ ऑफ फ्रॉड अगर निकाल, क्योंकि फ्रॉड में ऑलरेडी 492 थे। मैं चाहता हूं कि ये टू रो से रैंडमली टू रो उठाए, टू रोज को छोड़कर टू रो उठाए रैंडमली। ओके, फिर वही कंकैटिनेशन किया, लेजिट सैंपल और फ्रॉड वाले को हमने कंकैटिनेट करके अगेन डेटा में स्टोर किया। फिर एक्स वाई किया सेम, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट किया, स्प्लिट किया, मॉडल किया और मॉडल से इसको मॉडल डॉट फिट किया, और एक दो हमने और भी किए थे। और इसमें मैंने क्या किया इस बार, ट्रेन टेस्ट दोनों के लिए किया। मैंने कहा था कि आप ट्रेन के लिए भी कर सकते हो, जो कि एक ऑप्शनल स्टेप है। तो मैंने ट्रेन एसईसी एंड टेस्ट एसईसी के नाम से दो वेरिएबल बनाकर एक्यूरेसी के अंदर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट मैंने डायरेक्टली किया। ठीक है, डायरेक्टली ताकि लाइंस ऑफ कोड कम हो। नाउ लेट्स क्रिएट आवर ऐप। सो आई विल पुट हियर अ कमेंट वेब ऐप। हमेशा की तरह सबसे पहले टाइटल, तो जो हमने स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट किया है st के नाम से, उसके अंदर एक फंक्शन है टाइटल, and we will see that we will type here credit fraud detection model, और उसके बाद यूजर से इनपुट लेते हैं। सो
इनपुट df विल बी इक्वल टू st के अंदर एक टेक्स्ट इनपुट के नाम से फंक्शन है, उसके अंदर कहते हैं इंटर ऑल required features values. Now this is an optional command, you can type here anything what you want. अब चूंकि जो फीचर्स हो गए क्लास वाले को छोड़कर बाकी जितने भी फीचर्स हो गए यूजर वो यहाँ पे डालेगा और वो कॉमा सेपरेटेड है। सो हमने इसको एक नया वेरिएबल में स्टोर करना, इनपुट df स्प्लिटेड के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और जो यूजर ने इनपुट किया है उन पे स्प्लिट करता हो कॉमा से, ठीक है, उनको मैंने जस्ट कॉमा से स्प्लिट किया। उसके बाद यानी यूजर ने जो इनपुट किया वो इस वेरिएबल के अंदर आ गया और इस वेरिएबल को मैंने स्प्लिट किया कॉमा से क्योंकि देयर आर 30 फीचर्स और इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर किया। अब मैं एक सबमिट बटन बनाऊंगा तो इसको भी मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, सबमिट विल बी इक्वल टू st.button और इसके अंदर लिखता हूँ सबमिट। ओके अब मैं चेक करूंगा सबसे पहले कि अगर ये सबमिट बटन पे किसी ने क्लिक मारा है तो मुझे वो दो मैसेज डिस्प्ले करने हैं कि या तो ये फ्रॉड है ट्रांजैक्शन या लेजिटिमेट है। बट बिफोर दैट वी हैव टू कन्वर्टेड दिस इनपुट फीचर इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, इन अदर सिंपल वर्ड्स वी कैन से numpy array। सो मैं एक हेल्पर वेरिएबल बनाऊंगा np df will be equal to our final input user input store in this variable। सो np dot age array के नाम से हमारा एक फंक्शन है जो बेसिकली यही काम करता है और इसके अंदर में ये input df splitted and d type will be float। मैंने वहां पे कौन सा टाइप यूज किया था, लेट मी चेक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग I'll copy this thing, okay, control C and I'll simply paste it क्योंकि हमने इसको numpy array में स्टोर करना है और इसकी टाइप हो सकता है न्यूमेरिक हो, वो जो फीचर हमारे न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग हो, लेकिन हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। इसको अगर हम फीचर्स नाम दे तो it would be perfect because there are a lot of features that would be entered by user। अब हमने मॉडल से प्रेडिक्ट करना है। सो प्रेडिक्शन नाम से एक वेरिएबल बना के मैं इनको स्टोर करता हूँ, बट मुझे इनको रिशेप भी करना है तो हम साथ ही कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं मॉडल डॉट प्रेडिक्ट ऑन दिस फीचर्स, बट बिफोर प्रेडिक्टिंग वी हैव टू रिशेप्ड because we need only one row, one instance, either fraudulent or either 0 or 1। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर प्रेडिक्शन के ऑल इंडेक्स दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 इक्वल टू 0 देन st राइट करके ये एक लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है, लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन। otherwise if there is 1 then this is fraudulent transaction। let's check our app। तो आपने क्या करना है, अपने टर्मिनल में जाना है और ये पहले वाले को मैं क्लोज करता हूँ, यस क्लोज इट, और उसके बाद में दोबारा टर्मिनल में जाके यहाँ पे लिखना है अपने स्ट्रीम लेट रन ऐप whatever the name we have this time test.py streamlit run test.py and enter, and a bit later it will pop up your web app in your Chrome। so it's running, yeah। So credit card fraud detection, then you have to if I type here something and click on submit button, it should display that message, but what we have to do, it will give an error because these are something else। so मुझे वो input लेके आना है, तो मैं कैसे लाऊंगा,
तो मुझे पता है कि मेरा जो डेटा था क्रेडिट कार्ड, मुझे इसको डिलीट करना था, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप मुझसे हुआ था। लेट मी डिलीट दिस वन। इसको मैंने ओपन करना है, ये मेरा जो डेटा सेट है वो है। तो अगर मैं लास्ट में जाऊं और यहाँ से लास्ट में रैंडमली दरमियान में कोई उठाते हैं, इसके ये जो लास्ट फीचर है इसको छोड़कर, क्योंकि ये क्लास लेवल है, बाकी यहाँ से कॉपी पेस्ट मारो, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं जस्ट इसको आपको तरीका बताऊंगा, बाकी आप लोगों ने कंट्रोल सी and go to your browser and paste here and run. Submit, not run. Legitimate transaction because it was 0. So अब 1 के लिए भी चेक करना। वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो ये था पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है। आप लोग एक काम करो कि जो डेटा सेट था उसको एक बार फिर से स्टडी करो, बिकॉज मॉडल बनाना बहुत सिंपल है, डेटा सेट को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा बहुत ही अहम, लेकिन आप लोग क्या करो, जो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है उसको एक्सेस करो, और पिछले जितने भी प्लेलिस्ट वीडियोस है उनको एक्सेस करके देखना। तो ये वीडियो भी लाइक करो एंड चैनल चैट जीपीटी मास्टर को भी सब्सक्राइब करो। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट।